Hello future charters, this is CA finalist Neha Tiwari, and in this video I'll let you know what are the important topics to be done chapter wise and what outlook one should hold while preparing your least prioritized subject, that is strategic management. So let's begin with it. So before we further proceed, you have to keep 3 points in your mind. Firstly, you have to only refer ICI module with respect to SM. You have to consider ICI module as your holy book. Do not refer any of the notes which you had purchased online or any of the YouTube channels if they are not referring ICI module. And secondly is do not follow the sequence as suggested by ICI. Why I'm telling this? Because I have analyzed and I felt that it is somewhere unorganized and it will be difficult for you to retain the concepts and the topics because it does not relate and it cannot be connectable in a prompt manner. So firstly you have to complete chapter number 1, then 4th, then 2nd and 3rd, and last May you have to do chapter 5th. And third point is you have to do the revision consistently. So let's begin with what are the topics subject wise to be done in SM. So guys, it's a request, please go and take your ICI module, and because you have to mark all the important stuffs that I'm going to coordinate in this video, and do not skip it, do watch till last because it's genuinely going to be important. So let's begin with chapter number 1. So you have to start with the definition which is given by 2 professor. You can do one which I did was of William F. Glowacz, which is given on 1.4. You have to do the definition from start to end, and you cannot change the replace the words like इसका आर नहीं कर सकते because definition is something जो कि आपको जैसा बताया गया है आपको वैसे ही सामने वाले को कन्वे करना आना चाहिए. And उसके बाद you have to do what is proactive and reactive, फिर importance and limitations of strategic management. Strategic management के लिए I wouldn't suggest you to read every single line. You can refer it on page number 1.12. वो चार्ट दिया है सर्कल वाला, you can go through it. And it's not important to write your answers in the language as given by ICI. You can use your own words, you can write in your own language. So only thing is you cannot skip or you cannot avoid to use the important keywords. For example, let's say if I'm talking about vision, right? So vision mein you have few words, that is future blueprint, so you cannot skip that. If you are writing in your own words, that's okay, that's enough, but you have to be use some catchy words as used in your ICI module. And uske baad you can do one single statement of vision, mission, goals and objectives. So you will complete your chapter number 1 with all this. So guys, next chapter will be chapter number 4, which is very important, and I hope कि आप सभी मॉड्यूल लेके बैठे हो तो आपके पास ज्यादा समय नहीं रह गया है. मैं डायरेक्टली आपको पेजेस बता रही हूँ एंड कंसेप्ट बता रही हूँ जिसको आपको पढ़ने हैं और जिसको आपको स्किप करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ 4.4 पेज नंबर 4.4 में नीचे चार्ट दिया गया है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको इनसाइट समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या 4 चीजें आने वाली है. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बाजू में स्लैश करके आप लिखेंगे जेनेरिक, डायरेक्शनल एंड ग्रैंड, क्योंकि ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि आईसीआई मोस्टली यूज करता है और कंफ्यूज कर देता है. फिर बच्चे बोलते हैं अरे मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं, मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं. तो मैं चाहती हूँ कि आप तक हर एक छोटी सी छोटी चीज पहुंच जाए एंड यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम डूइंग इररिलेवेंट concepts and topics. Then you can skip page number 4.5. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी आपको कैरेक्टरिस्टिक से समझ जाएगी. सो अभी मैं जो आपको जो टॉपिक्स बताऊंगी उसमें आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स याद करने ही करने हैं. स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी में आपको 4 पॉइंट्स रट लेने हैं. एंड देन उसके बाद यू कैन कम टू पेज नंबर 4.10. 4.10 पे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स हैं, दैट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड हॉरिजॉन्टली, वो आपको याद करनी है. देन इनोवेशन के टाइप्स याद करनी है. उसके बाद you can move to page number 4.17. Strategic alliance is important because वो mostly पूछे गए हैं previous year question papers में. उसके बाद you can move to strategic exits. Strategic exits में you have to do 3, that is turnaround, divestment and liquidation. And action plan आपको याद करनी है, वो एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं. एंड देन यू कैन मूव टू 4.22. स्टार मार्क करनी है मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, ये आता ही आता है, मुझे पता नहीं इस बार आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चांसेस तो है, तो आप इसको स्टार मार्क कर दीजिए.
उसके बाद अब आते हैं आपके मैट्रिक्स एंड ऑल थियरी पार्ट। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट थियरी है जो मैं आपको बोलूंगी, आपको करना ही करना है। एनसॉफ्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स कर लेना, उसके बाद अपना एडीएल तुम रीड कर लोगे चलेगा, लेकिन आई डोंट फील कि एडीएल इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वाला ग्रोथ मैट्रिक्स आपको याद करनी है, दो। दैट्स इट, इतना कर लोगे चैप्टर 4 विल बी डन। नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर 2 एंड जिसमें मैं आपको डायरेक्टली पेज नंबर बता रही हूँ, आपको मार्क करना है 2.9, पूरा पेज इज इम्पॉर्टेंट। देन यू कैन मूव टू 2.16। 2.16 में पेस्टल क्या होती है पूरी कवर हो गई है, यानी ये हमने पढ़ा है प्रीवियसली तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर मूव टू 2.18, इंटरनेशनलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन 2.21 इजी है, प्रोडक्ट्स टैंजिबल इंटैंजिबल प्राइस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। देन यू कैन मूव टू पेज 2.22, दैट इज पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करनी है आपको। उसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए यू कैन मूव टू पेज नंबर 2.25। उसके 5 मेन एरियाज है जो कि आपको याद करनी है एंड वो पूछे जाते हैं तो आपको रट लेना है। उसके बाद आपका आता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, पेज नंबर 2.27 में जो बुलेट्स दिए हैं 5 वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यू कैन डायरेक्टली स्विच टू द थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, हेड पॉइंट्स याद रखने, बाकी तो यू कैन राइट इट बाय योर ओन सेल्फ। एंड देन यू हैव टू डू दी ये भी करना है, ओके। एक्सपीरियंस कर्व, पेज नंबर 2.35, डबल ट्रिपल स्टार पूछते ही पूछते हैं। एंड वैल्यू क्रिएशन आप स्किप कर सकते हो, बस रीड करनी है। कस्टमर एंड कंज्यूमर के बीच का डिफरेंस याद कर लेना। एंड पेज नंबर 2.41 डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, उसके 3-4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। एंड 2.43 पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेप्स याद करनी है। उसके बाद की फैक्टर्स नहीं किया तो भी चलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर चैप्टर नंबर 2। सो फॉर चैप्टर नंबर 3 आपको 3.5 मार्क करना है एज एन इम्पॉर्टेंट मेंडेलोस मैट्रिक्स। Then you can move to 3.10 प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का स्टार्ट टू एंड आपको उसको अच्छे से रीड करना है एंड बाय हार्ट भी करना है। एंड उसके बाद आप 3.14 पे आ सकते हो। मार्केटिंग के इतने सारे टाइप्स, मैं बोलूंगी नहीं कि सब रटना है, बल्कि आपको इसमें से एटलीस्ट 6 तो रटना ही है और सबको रीड करना है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपको वो बोल देंगे कि पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, तो फिर ये कौन सी मार्केटिंग हो गई, तो ये पर्सन मार्केटिंग हो गई, तो इसके लिए आपको वो रीड करना पड़ेगा पूरा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू स्किप इट। उसके बाद यू कैन मूव टू पेज 3.18। अकॉर्डिंग टू CK प्रहलाद एंड गैरी हैमिल वाला वो 3 पॉइंट्स, कॉम्पिटिटर, डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स करनी है। फिर पेज 3.20 पे CC को कॉम्पिटेंसीज को मार्क करना है। देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू पेज नंबर 3.24, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये पूछा जाता है, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी वगैरह, तो ये आपको करनी है। उसके बाद माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, ये भी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। और इसमें कैसा है कि यू हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का पार्ट, राइट। तो बाकी एक रीड करो, एक रीड करके उसको याद कर लो, उसको रट लो मेरी भाषा में, एंड देन यू कैन मूव टू अदर टॉपिक एंड उसको बस रीड करो, हर एक चीज का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने मत जाओ। इतना कर लोगे तो आपका चैप्टर नंबर 3 भी डन। So guys, chapter number 5 is very vast chapter and you are not left with so much of time to read every individual concept. So you can first go with page 5.4 का stages and then directly move to page number 5.7. उसमें लास्ट वाला जो पार्ट है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आपको याद करनी है। एंड देन आपको स्किप करते करते आपको आगे आनी है पेज 5.16 पे, डिफरेंशिएशन, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच का याद करना है। देन यू कैन मूव टू 5.17, फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होती है उसकी एक लाइन पर याद कर लेनी है। रीड पूरा कंसेप्ट करना है, बस बाकी एक लाइन याद कर लोगे तो इट विल बी गुड एंड इनफ।
उसके बाद यू कैन मूव टू पेज 5.21. कर्ट लेविन्स मॉडल ऑफ चेंज इज इम्पॉर्टेंट, मार्केट इम्पॉर्टेंट. अगर आप पूरा नहीं भी कर रहे हो तो 5.22 में चेंजिंग टू द न्यू एनवायरमेंट के पॉइंट्स हैं. कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन. तो ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद करनी है. देन यू हैव टू skip and move to page number 5.27. ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में आपको ये जो एस वाले कंसेप्ट हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, ये सब उसको रीड करनी है आपको ऊपर से. देन यू कैन मूव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 5.31 पेज नंबर. इसको आप लास्ट में करना, आपका जब पूरा एसएम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, आवर स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको वीडियो में भी एक आप देख लोगे तो दैट वुड बी इनफ. ऐसे सेपरेटली तो नहीं पूछा जाता है. हाँ, इस बार के पहले ही क्वेश्चन में एक केस सिनेरियो दिया था एंड जैन अटेम्प्ट में, एंड अब पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज इट. तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिर से वही क्वेश्चन, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा. तो ये आपको लास्ट में करनी है. उसके बाद यू कैन डायरेक्टली मूव टू पेज नंबर फिर ये अपना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, इसके डिफ्रेंसिएशन पूछ सकते हैं. दैट इज ऑन पेज नंबर 5.54. तो वो भी आपको याद करनी है. फिर आपका चैप्टर 5th भी कंप्लीट हो जाएगा. बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं वो मैंने एनालाइज किए कि वो नहीं पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में, एंड इट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट. एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड गाइज मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, सो जस्ट एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो हर एक फ्यूचर चार्टर्स को जो दिन रात मेहनत करते हैं. थैंक यू.